Yesterday's lecture was on your No, determination ma'am. of pavement thickness using modified CBR method or IRC method. Okay, the Hmm. code in the code there will be one equation. We have to use that equation for solving the problem. Now this is, there are more other methods. I will teach you those method later on. Okay, those are not so important for this internal purpose, but this topic, the today's topic is very much important. That's why I am jumping. Okay, to the topic. So today's topic is rigid pavement design. Here we must know that two important topics is to be covered in this course, in this lecture. Okay, in rigid pavement design, we will get problems from two important topics. One is what? One is the stress analysis. In the rigid pavement, what are the different types of the stress that will generate, where they will generate, okay, and due to what reason these stresses are being generated in the slab, okay, in the rigid pavement, and their critical combination. Okay, if we add up all the stresses, then which combination will give you the most critical one, which will be dangerous for this slab. Okay, and another topic is the design of joints. Design of joints means what? See here. Here you can see this is your cross section of a rigid pavement. The top surface is the slab. It is the PCC or RCC slab. Then base course, sub base, then subgrade. Okay, we have to, here design means what? We have to design this slab. ओके, हम लोग को ये डिजाइन करना है, स्लैब को डिजाइन करना है। को डिजाइन का मतलब क्या है? इसका लेंथ कितना होना चाहिए, इसका ब्रेथ कितना होना चाहिए, ठीक है, और इसमें क्या क्या स्ट्रेसेस आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, और मेनली इज व्हाट पेवमेंट डिजाइन मीन्स व्हाट थिकनेस डिजाइन। We have to design this one, this thickness of the slab, okay, which is denoted by H, and unit will be in centimeter. क्लियर? अब आते हैं कि यहाँ पे जॉइंट्स का मतलब क्या है। अब एज वी नो दैट इट इज मेड अप ऑफ स्लैब्स, ठीक है, ये जो पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट तुम्हारा स्लैब से बनता है। तो हम लोग एक स्लैब के कंटिन्यूअस दे सकते हैं, लंबा है तुम्हारा सपोज 100 किलोमीटर का रास्ता है, तो हम लोग के 100 किलोमीटर लंबा एक स्लैब कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे बिठा सकते हैं? नहीं मैम। साइड में नहीं कर सकते उसको, राइट? सो व्हाट वी डू, वी विल कंस्ट्रक्ट स्मॉल स्लैब्स एंड वी विल जॉइन देम टुगेदर, ठीक है, जॉइन देम। मतलब यहाँ पे क्या, ये सब डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे गैप हो जाएगा, राइट? देयर विल बी থার্মোকল गैप्स। দিয়ে দেয়। थर्मोकॉल, अरे रुको ठीक ही बोले जो, ठीक है, गैप्स, दे विल प्रोड्यूस सम गैप्स, दोज गैप्स आर नोन एज joints. Okay, and basically there are two types of the joint. See here, what is this? This is the direction of the traffic. ये तुम्हारा ट्रैफिक का डायरेक्शन है, मतलब ट्रैफिक इस तरफ से जाएगा और इस तरफ से आएगा, दो लेन है, ठीक है, टू वे ट्रैफिक हुआ तो इस तरफ से जाएगा, इस तरफ से आएगा। ओके, ম্যাম सो এই রোডগুলো হচ্ছে আপনার সার্ভিসিবিলিটি বেশি, কিন্তু हाँ অ্যাক্সিডেন্ট জোন বেশি, তাই তো हाँ ম্যাম? কারণ ঠিক আমাদের আছে, এখানে হয়েছে রিজিড পেমেন্ট, বিশাল অ্যাক্সিডেন্ট হয়। হ্যাঁ, সেটা যদি এই জয়েন্টস গুলো ভালো করে না হয় ডিজাইন, সেটা আমাকে ডিজাইন করতে হয়। ওকে, নাও সি, now this is your direction of the traffic. There are two types of the joint. See, this joint is what? Parallel to the direction of the traffic, right? मतलब ये ट्रैफिक का जो भी डायरेक्शन है उसका along the direction of the traffic है, या बोल सकते हैं this is parallel to it. Okay, and और एक joint क्या है? See, like this joint. Now this is what? This is perpendicular to the direction of the traffic. ट्रैफिक अगर ऐसे जा रहा है तो ये perpendicularly बना हुआ है। ओके, एंड दिस जॉइंट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनली जा रहा है, फॉर्म हो रहा है। एंड वेर एज दीज आर योर ट्रांसवर्स जॉइंट, मतलब स्लैब को काट दिया है, इन ट्रांसवर्स सेक्शन अगर काटेंगे तो ऐसा दाग हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको बोल दिया क्या? ट्रांसवर्स जॉइंट, ठीक है। अब ट्रांसवर्स जॉइंट, जॉइंट का डिजाइन का मतलब क्या है कि इन लोगों का स्पेसिंग, मतलब यहां से लेकर यहां तक का
लेंथ होगा, मतलब एक जॉइंट और दूसरा जॉइंट के बीच का गैप कितना है, उसको बोलते हैं स्पेसिंग। ठीक है, तो जॉइंट का डिजाइन मतलब है वी हैव टू डिजाइन दिस स्पेसिंग। और एक यहाँ पे जॉइंट्स में और एक इम्पोर्टेंट क्या आता है, देखो यहाँ पे एक बार्स दिया गया है, see here this red color bars, okay, since these joints are not continuous, this मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, गैप होगा, तो गैप होने की वजह से अगर कोई क्या बोलते हैं व्हील या कोई गाड़ी इसके ऊपर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर वीकर जोन, राइट, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस नहीं, यहाँ पे गैप है, वीक जोन है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, दे विल बी मोर स्ट्रेस डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसकी वजह से क्रैक्स डेवलप होने का चांसेस होता है जब ये वाला एकदम एज में आता है, इस ट्रांसवर्स जॉइंट के पास में आता है। तो क्या करना है हमको, इसको स्ट्रेंथनिंग करना है, ये जॉइंट को तब इस वाले पोजीशन में स्ट्रेंथनिंग करना है, इसलिए ये सब बार्स, रेनफोर्समेंट बार्स दिया गया है। लेंथ इन लोग का होता है मैक्सिमम 500 mm, मतलब 50 सेंटीमीटर बार्स है ये। ठीक है, और 2.3 से 3 सेंटीमीटर तक इसका डायमीटर होना चाहिए। तो ऐसे एक स्पेसिंग में करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सिर्फ जॉइंट्स के इस पार और उस पार होगा ये। दोस जॉइंट्स, दोस बार्स आर नोन एज डावल बार। याद रखो, ये डावल बार बाद में भी आएगा। दिस डावल बार्स आर प्लेस्ड इन द ट्रांसवर्स जॉइंट, ठीक है, एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक एंड आर प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक भी इसी डायरेक्शन में है, डावल बार भी इसी डायरेक्शन में अलाइन होगा। ठीक है, अब देखो ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, दिस वन इज योर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, दिस वन, ये भी एक क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसकी वजह से देखो यहाँ पे येलो करके ऐसा ऐसा बार्स दे दिया है, एंड दीज बार्स आर टाई बार, इसको बोलते हैं टाई बार, TI, टाई बार। ठीक है, TIE टाई बार्स। ठीक है, इसका भी डिजाइन करना है, मतलब कितना लेंथ होगा, कितना डायमीटर होगा, स्पेसिंग कितना होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा जॉइंट्स के अंदर में आ जाता है। बट टुडेज टॉपिक इज ऑन, ये वाला क्लियर है? तो ম্যাম তাহলে অ্যাঙ্কারটা কাকে বলছো? অ্যাঙ্কার এটাকে টাই বার বলছি, অ্যাঙ্কার या टाई। ठीक है, टाई ঠিক আছে मतलब दोनों स्लैब को जोड़ के रखा हुआ है, टाई करके रखा हुआ है। ठीक है, वेरेज ये वाला क्या करता है, ये अगर लोड यहाँ पे आएगा, कोई भी लोड इस वाले स्लैब में, ये वन स्लैब, ये वाला सेकेंड स्लैब में आएगा, तो इसका फुल लोड नहीं, ये मतलब कुछ पोर्शन, ये व्हील लोड का कुछ पोर्शन इट विल ट्रांसफर देम थ्रू दिस बार टू द अनदर स्लैब, मतलब ये बार्स तुम्हारा क्या करेगा, लोड को ट्रांसफर कर देगा कुछ पोर्शन। अगर P है तो इसका 40% ये सब मिलकर इस वाले स्लैब पे ट्रांसफर कर देगा, तो इसीलिए इसका नाम भी हो सकता है कि लोड ट्रांसफर डावल बार, लोड ट्रांसफर डावल बार। वेरस टाई बार का काम लोड को ट्रांसफर करना नहीं है, इन दोनों स्लैब को जोड़ के रखना है। क्लियर? इसलिए नेम इज टाई बार। लेकिन हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, आई सेड इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेसेस इन पेवमेंट। अब स्ट्रेसेस किस किस वजह से आ सकता है, एनी आइडिया? पेवमेंट में स्ट्रेसेस कहाँ कहाँ से आ सकता है या किस किस वजह से आ सकता है? ম্যাম হুইল লোড एग्जैक्टली, हेवी गुड्स নিয়ে গেলে heavy goods, everything are related to what? Those are related to the load only, right? So ইয়েস ম্যাম due to loading there will be one kind of stress generation within the slab। ठीक है, सपोज ये वाला टॉप व्यू है, देखो इसको बोलते हैं टाई बार, ये लॉन्गिट्यूडनल तुम्हारा जॉइंट है, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, तो इसमें जो भी बार है टाई बार, एंड दिस इज अ ट्रांसवर्स जॉइंट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक का परपेंडिकुलर में है, ट्रांसवर्स जॉइंट है, तो यहाँ पे जो भी बार होगा देखो डावल बार्स। ठीक है, ये हम बाद में आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसवर्स जॉइंट्स भी रहता है, एक है एक्सपांशन जॉइंट, एक है कंट्रैक्शन जॉइंट। ठीक है, ये सब। अब बोलते हैं कि एक आता है तुम्हारा ड्यू टू लोडिंग। ठीक है, ये वाला देखो स्ट्रेसेस कहाँ कहाँ से आता है, एक आ रहा है तुम्हारा ड्यू टू व्हील लोड, स्ट्रेस विल डेवलप ड्यू टू व्हील लोड। इसके लिए तुम्हारा तीन क्रिटिकल जगह होगा, स्लैब का तीन क्रिटिकल जगह पर मतलब लोड ज्यादा आ सकता है। एक क्या है, इंटीरियर लोडिंग कंडीशन, एज लोडिंग कंडीशन, और एक है कॉर्नर लोडिंग कंडीशन। ठीक है,
मतलब ऐसा, अगर ये स्लैब हुआ, ठीक है, मतलब एक स्लैब हम उठा के यहाँ पे रख दिया, वहां से उठा के यहाँ पे रख दिया, और यहाँ से तुम्हारा गाड़ी इस तरफ से जा रहा है व्हील, ठीक है, गाड़ी इस तरफ से जा रहा है। तो ये स्लैब का कहाँ कहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट है, ये है एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 4 कॉर्नर्स में हो सकता है, कोई भी कॉर्नर्स में हो सकता है। तो कॉर्नर लोडिंग एक कंडीशन है। दूसरा है कि एज ऑफ द स्लैब, मतलब एज में, इस एज में या इस एज में, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एज ऑफ द स्लैब। और एक है कि इंटीरियर, मतलब कोई भी इन दोनों कॉर्नर और एज को छोड़कर कोई भी बीच में, इट मे बी इन द सेंटर और समवेयर हियर आल्सो, ठीक है। सो 3 जगह पर क्रिटिकल लोडिंग कंडीशन आ सकता है, ठीक है। अब दूसरा लोडिंग और दूसरा स्ट्रेस किससे जनरेट होता है, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। सिंस आवर रिजिड पेवमेंट इज मेड अप ऑफ कंक्रीट स्लैब, सो टेम्परेचर के ऊपर ये खूब, मतलब ज्यादा वेरी करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से तुम्हारा स्ट्रेस जनरेट हो सकता है विद इन द स्लैब। अब यहाँ पे 2 तरीका का तुम्हारा स्ट्रेस जनरेट होता है, देखो एक 2 नाम है, एक का नाम है वार्पिंग स्ट्रेस और कर्लिंग स्ट्रेस, ठीक है, वार्पिंग स्ट्रेस या कर्लिंग स्ट्रेस, देखो कर्ल हो जाता है, पेवमेंट कर्ल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं कि कर्ल ये वाला और ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वाला आता है तुम्हारा, अगर स्लैब हुआ ये, ठीक है, अगर दिस इज योर, मतलब साइड व्यू से देख रहे, स्लैब हुआ, सपोज टॉप में एक टेम्परेचर है T, बॉटम में एक टेम्परेचर है 2, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस अगर हुआ, सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस विल बी जनरेटेड इन द स्लैब। वो बाद में हम ड्राइंग से समझा देंगे कैसे हो रहा है, ठीक है, ये याद रखना। ये क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टॉप लेयर एंड द बॉटम लेयर, ठीक है। अब ऐसा वाला, उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होता है स्लैब में, दैट इज योर, आई एम टॉकिंग, दिस इज योर लाइक दिस स्लैब, ओके, आई एम टॉकिंग लाइक दिस, ऐसा है स्लैब को बोल रहे हैं। तो टॉप लेयर हुआ और बॉटम लेयर, इन दोनों के बीच में जो भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसकी वजह से ये स्लैब में जो स्ट्रेस जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड वार्पिंग और कर्लिंग स्ट्रेस। अब ऐसा वाला कंडीशन कब आता है, दिस इज योर डेली बेसिस टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब डेली टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब सुबह के टाइम में कुछ और होता है, रात के टाइम में कुछ और टाइप का स्ट्रेसेस जनरेट होता है। सो ये वाला होता है डेली बेसिस पे हो रहा है ये वाला टेम्परेचर डिफरेंस। देन व्हाट इज दिस वन, now this stress is developed when, जब हम लोग कास्टिंग करते हैं, ठीक है, पेवमेंट को कास्ट जब कर रहे हैं हम लोग, तब सपोज कुछ टेम्परेचर, सपोज देख रहे कि वो विंटर में तुम कास्ट किए हो, तो एक टेम्परेचर होता है T1 ये स्लैब का, ठीक है। अब ये वाला स्लैब क्या सिर्फ विंटर के लिए तो नहीं किए हो, ये तो थ्रू आउट इट्स डिजाइन लाइफ इसका हो सकता है 20 to 30 ईयर्स। तो देखो एक ईयर में तुम्हारा समर सीजन भी आता है, विंटर सीजन भी आता है, राइट। अब सपोज ये वाला कोई भी एक ऐसे सीजन में किया जो ज्यादा गर्म नहीं था या ज्यादा ठंडा नहीं था, ठीक है। अब तुम लोग, ये आस्ते आस्ते क्या हो रहा है कि एक मौसम आया जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज हो गया, जगह हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर आ गया, तब उसका टेम्परेचर सपोज T2, ठीक है। पहले इनिशियली टेम्परेचर स्लैब का था जब कंस्ट्रक्शन हुआ, एक था T1। अब बीच में एक ईयर ऐसा आया कि एक ऐसा दिन आया कि उसमें हॉटेस्ट टेम्परेचर हो गया, ईयर का हॉटेस्ट टेम्परेचर पहुंच गया, ठीक है। अब दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उसकी वजह से क्या हो जाता है बोलो, उसकी वजह से हो जाता है तुम्हारा क्या, ये सपोज टेम्परेचर ये वाला बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड, राइट, ये स्लैब एक्सपैंड कर जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी वजह से जो यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है, और उसको रेजिस्ट करने के लिए जो इंटरनली स्ट्रेस डेवलप होगा कंक्रीट में, दैट इज योर फ्रिक्शनल स्ट्रेस। क्लियर, ये वाला तो तुम्हारा स्लैब के अंदर में ही टेम्परेचर डिफरेंस, और ये वाला है स्लैब और बाहर का वेदर का टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है। अभी के लिए इतना ही जान लो, ये है क्या तुम्हारा, ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन टॉप एंड बॉटम लेयर ऑफ द स्लैब एट डे और एट नाइट टाइम, whereas this is what, this is the seasonal variation of the temperature,
That is temperature between the atmosphere and the slab. Clear? Yes, ma'am. Any doubt? Don't know me हाँ मैम difference? क्लियर। ठीक है, Clear, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। No, ma'am. मेनली 3 टाइप्स ऑफ द स्ट्रेसेस आर जनरेटेड। ओके, ये है तुम्हारा लोडिंग के लिए, ये है तुम्हारा वार्पिंग स्ट्रेस, ये है तुम्हारा फ्रिक्शनल स्ट्रेस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे होता है कि इन तीनों का क्रिटिकल कॉम्बिनेशन कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, तुमको जानना भी है। एज अ डिजाइनर यू मस्ट नो दैट क्रिटिकल कंडीशन ऑल्सो फॉर डिजाइनिंग द पेवमेंट थिकनेस। ओके, यहाँ पे पेवमेंट थिकनेस मतलब है सिर्फ हम लोग का क्या था, फ्लेक्सिबल पेवमेंट में हम सब थिकनेस डिजाइन कर रहे थे, सब सब ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेवमेंट का, यहाँ पे रिजिड पेवमेंट का थिकनेस का मतलब है ओनली वी हैव टू डिजाइन दिस स्लैब थिकनेस। ये वाला तो हम पहले जैसे भी डिजाइन करते थे हम बोले थे दिस सीमेंट कंक्रीट के नीचे जितना भी है ऑल विल रिमेन सेम। जैसे तुम्हारा फ्लेक्सिबल में था यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा, लेकिन सिर्फ वियरिंग कोर्स या सरफेस कोर्स सिर्फ चेंज हो रहा है रिजिड पेवमेंट में। वहाँ पे हम बिटुमिनस नहीं मिक्सचर नहीं करे, स्लैब बिठा दे रहे। सो हियर द इम्पोर्टेंट डिजाइन इज टू डिजाइन दिस थिकनेस। वी हैव टू डिजाइन दिस थिकनेस, ये थिकनेस हमको डिजाइन करना है। ठीक है, तो जब भी ये डिजाइन थिकनेस करते हैं देखना इट फुल्ली, ये फॉर्मूला जब भी कुछ पुट करके हम एच निकालेंगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दिस स्ट्रेसेस। ये स्ट्रेस वैल्यू हमको चाहिए ही चाहिए। ये जितना भी स्ट्रेसेस है उसको सेटिस्फाई करता कि नहीं करता है, मतलब सर्टेन थिकनेस सपोज हम 30 सेंटीमीटर स्लैब बोले हैं, तो 30 सेंटीमीटर स्लैब जो भी ये स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको टैकल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो हमको चेक करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग द डिजाइन वी मस्ट नो व्हाट आर द स्ट्रेसेस, हाउ दे आर जनरेटेड, व्हाट आर द नेचर एंड व्हाट विल बी द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस। ओके, अब आते हैं, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर we must know some few terms or terminology or parameters which are this one design parameters in rigid pavement। तो इसका हमको क्या चाहिए, मेनली फॉर्मूला हमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉब्लम में तुमको दिया नहीं रहेगा ये सब वैल्यू, देन वी हैव टू डिराइव इट। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज योर फॉर मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन which is denoted by K and unit is kg per centimeter। यूनिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखना। यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी फॉर्मूला में जितना भी पैरामीटर्स है उसका यूनिट एकदम तुमको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि उस यूनिट को ही इधर उधर करके ये लोग फॉर्मूला डिराइव किया है। तो अगर तुम सेंटीमीटर की जगह मीटर पुट गया तो पूरा फॉर्मूला ही काम में नहीं आएगा, तुम्हारा रॉन्ग आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, दिस इज कि अगर कोई स्लैब, लोड कहाँ पे आ रहा है, स्लैब पे आ रहा है, स्लैब के नीचे क्या है, सपोज सबग्रेड है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो तो सबग्रेड में भी तो आएगा। ठीक है, तो सबग्रेड किस, उसका रिएक्शन कैसा है, तब उसका रिएक्शन कैसा है, दिस इज डिनोटेड बाय दिस वन के। ठीक है, जो स्लैब पे हो रहा है ये डिफॉर्म हो रहा है, तो ये वाला डिफॉर्म अगर होगा तो ऑब्वियसली ये भी डिफॉर्म होगा, लेकिन इट विल ट्राई टू रेजिस्ट, तो उसको ही बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। मतलब यहाँ पे जो तुम लोग का सीबीआर वैल्यू था, फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो सीबीआर था, यहाँ पे रिजिड पेमेंट में सेम के है। वी मस्ट नो द के वैल्यू ऑफ द सबग्रेड। वहां पे फ्लेक्सिबल पेमेंट में सीबीआर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो सबग्रेड का प्रॉपर्टी डिफाइन करता था। यहाँ पे भी तुम्हारा रिजिड पेमेंट में नाउ सीबीआर कन्वर्ट होके क्या हो जा रहा है, के हो जा रहा है। कन्वर्ट नहीं हो रहा है, हम बोले कि ये के इंपॉर्टेंट है, जैसे वहां पे सीबीआर इंपॉर्टेंट था। मतलब दिस विल ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ द सबग्रेड। ओके, और यूनिट है दिस वन। दिस इज गिवन बाय प्रेशर पर तुम्हारा डिफ्लेक्शन, डेल्टा इज डिफ्लेक्शन, ये प्रेशर है, इसीलिए प्रेशर है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिफ्लेक्शन इट इज कांस्टेंट, स्टैंडर्ड रखा है कितना 0.125। बहुत सारे प्रॉब्लम में के का वैल्यू दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहता ये वाला अगर देगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा 0.125 वी कैन डिटरमाइन दिस के, जिसका यूनिट होगा ये वाला। ठीक है, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट
parameter is this one. यहाँ से तुम्हारा problem भी आ सकता है. This value we can use in deriving the other values, other stress values. ठीक है. Now this is what? This is the radius of relative stiffness बोल के इसका नाम है. ठीक है. Radius of relative stiffness. ये थोड़ा याद करना है तुम लोग को. Which is given in centimeter. And its formula is E by 12K 1 minus mu square. ठीक है. अब यहाँ पे देखो ये सब क्या है वैल्यू है. E is your Young's modulus. ठीक है. E क्या है? Young's modulus है. If not given, assume this one. अच्छा, everyone please note down this formula. ये L का फॉर्मूला नोट डाउन करो. रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का. ওকে ম্যাম। নাহলে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো, নাহলে এটলিস্ট নোট ডাউন করে রাখো, এটা কাজে লাগবে পরে. একটা অঙ্ক দেব তখন ওখানে কাজে লাগবে এটা. ঠিক আছে. See, E sometimes they will give you E value, otherwise they will just ask you to assume. That time we have to take this one. Cement concrete का modulus of elasticity is this one. Okay. H is the slab thickness. जो भी स्लैब है, ऐसा हम बोले थे, इसका स्लैब का थिकनेस. ठीक है. देखो हाउ इट डिपेंड्स ऑन एच. हमने बोला था ना, एच तुमको चाहिए रहता है. एच विल डिसाइड कि कितना स्ट्रेस जनरेट हो सकता है. मतलब पूरा ये डिजाइन सही है कि नहीं डिपेंड होता है. ठीक है. देखो किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है एच. एल देखो एच के ऊपर ही डिपेंडेंट है. नाउ एल एच इज स्लैब थिकनेस इन सेंटीमीटर. K you know, modulus of subgrade reaction. Now mu is what? This is the Poisson ratio of concrete. If not given, assume this much. ये नोट डाउन करो. E का वैल्यू ये होगा और mu का वैल्यू 0.15. Now see here, critical loading position as I already said. ম্যাম তিন এর জায়গা ভ্যালুটা আরেকবার দেখতে পারবো? দেখ দেখ দেখ. E হচ্ছে 3 into 10 to the power 5. ঠিক আছে. ঠিক আছে ম্যাম। As I already said, critical conditions क्या क्या है, मतलब लोडिंग का क्या है. मैक्सिमम स्ट्रेसेस विच इज डेवलप्ड इन दिस. मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ कहाँ पे डेवलप हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द लोड. और यहाँ पे 3 क्रिटिकल लोड है. क्या क्या है? लोकेशन है, एक है बीच में, कहीं भी बीच में, एक है कॉर्नर में, एक है एज में. ठीक है. लाइक दिस. दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म ये भी नोट डाउन करो. दूसरा इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन. अगर ऐसा दिया रहेगा दैट मीन्स इट इज बी. कोई भी फॉर्मूला में जहां पे बी दिया है मतलब ये वाला है. ठीक है. मतलब स्ट्रेस के फॉर्मूला में हम बोल रहे हैं, जो स्ट्रेस हम लोग यूज करेंगे स्ट्रेस फॉर्मूला, वहां पे बी का मतलब है ये वाला इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन. अब इसका 2 कंडीशन है. उसके पहले ये बी कैलकुलेट करने के पहले वी मस्ट सेटिस्फाई दिस 2 कंडीशन. अगर इनमें से कोई भी सेटिस्फेक्शन होगा तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सी ए का मतलब है कॉन्टैक्ट रेडियस. मतलब आई एज अ लेक्चर सपोज दिस इज योर व्हील. ठीक है. तो इसका कॉन्टैक्ट एरिया कैसा होता है. इट विल बी सर्कुलर. फॉर आवर डिजाइन पर्पस वी हैव एज्यूम दैट द कॉन्टैक्ट, इसका अगर इम्प्रिंट छाप अगर हम लेंगे तो सर्कुलर इसको एज्यूम करेंगे. तो सर्कुलर मतलब वहां पे ऑब्वियसली रेडियस होगा एंड दिस इज दैट रेडियस. मतलब जिस एरिया के थ्रू ये व्हील लोड जाएगा पेवमेंट के नीचे. ठीक है. चक्के का जो भी नीचे का छाप है उसके थ्रू ही तो लोड जाएगा ना. मतलब चक्का जिस सरफेस पे टच करेगा उसी के थ्रू ही तो तुम्हारा लोड ट्रांसफर होगा पेवमेंट में. नाउ दैट सरफेस इज द कांटेक्ट एरिया और उसका रेडियस इज कांटेक्ट रेडियस. दिस इज द ए. ओके. एंड एच वी नो दिस इज द थिकनेस. तो चेक करो, ए का वैल्यू एक दिया रहेगा, एच का वैल्यू एक दिया रहेगा, तो ये वाला सेटिस्फाई करेगा तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. अदरवाइज इफ ए इज ग्रेटर देन दिस वन देन वी हैव टू यूज दिस वन. ये এটা নোট ডাউন করো. A unit will be centimeter, H unit will be centimeter. हुआ? Yes, ma'am. अच्छा हाँ मैम। ठीक है.
अब कभी कभी तुमको एक प्रॉब्लम भी आ सकता है कि बोलेगा सपोज कॉर्नर में अगर लोड आया है, ऐसा स्लैब है, कॉर्नर में लोड आया है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है, कितना डिस्टेंस पे जाके जनरेट होगा। सो दिस इज दैट डिस्टेंस। कॉर्नर से बाइसेक्ट करोगे एक लाइन, जाओगे जाओगे इस वाले पोजीशन में आके देखोगे कि इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस वेयर इट विल ऑकर ड्यू टू कॉर्नर लोडिंग, ठीक है। तो what is that distance from the corner? That is given by capital X। अब X का फॉर्मूला ये है 2.58 अंडर रूट A इंटू L। L क्या था? L was your radius of relative stiffness और उसका फॉर्मूला क्या था? L equals to, उसका फॉर्मूला था दिस वन, फर्स्ट वाला जो था, सॉरी सेकेंड वाला, ये दिस इज द L, ठीक है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस स्मॉल L। सो वो पहले कैलकुलेट करो, फिर ए से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करके ये मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दैट वैल्यू। सो ये सब फॉर्मूलाज है, इतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब लगेगा इसलिए हम यहाँ पे कर दिए हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। नाउ कम्स, आई सेड स्ट्रेसेस है 3 प्रकार का, उसमें से फर्स्ट स्ट्रेस क्या है? कॉर्नर सॉरी लोड की वजह से, व्हील लोड की वजह से। नाउ देयर आर सम इक्वेशंस फॉर ऑल दिस टाइप्स ऑफ द लोड, ठीक है, एक एक इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और बोला गया है, एंड द फॉर्मूला इज नोन एज वेस्टरगार्ड इक्वेशन, ठीक है, वेस्टरगार्ड्स स्ट्रेस इक्वेशन, वेस्टरगार्ड्स स्ट्रेस इक्वेशन, वो 3 इक्वेशंस दिया है फॉर दिस 3 कंडीशन। नाउ लेट अस सी व्हाट आर दोस इक्वेशंस। सी, एक है स्ट्रेस ड्यू टू इंटीरियर लोडिंग डिनोटेड बाय S सफिक्स I, S है स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग और I है इंटीरियर में, ठीक है, एज है E कॉर्नर। सो these are the 3 equations, okay, these are the 3 equations। अब यहाँ पे देखो हम क्या बोले थे, दिस इज द स्ट्रेस जेनरेटेड ड्यू टू लोडिंग, तो ऑब्वियसली व्हील लोड आना ही चाहिए, इक्वेशन में व्हील लोड होना चाहिए, दिस इज दैट व्हील लोड, ठीक है। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग दिस इक्वेशंस और दिस stresses, what we require, have wheel load, we must have thickness of the pavement, we must have radius of relative stiffness, and we must have that radius of resisting section B, okay। तो ये सब फॉर्मूला हम पहले दे दिए, इसीलिए हम वो फॉर्मूला वहां पे रख दिए, so that we can use those formula if the value is not given and apply them here to get the answer for the stresses। देखो सब यही है, सेम है। सो दिस आर द 3 स्ट्रेसेस। अब यहाँ पे यूनिट तुमको याद रखना ही पड़ेगा, H है सेंटीमीटर में, मतलब स्लैब थिकनेस, P व्हील लोड kg, A as I said it's a contact radius in centimeter, L radius of relative stiffness in centimeter, B is your radius of resisting section in centimeter। So can we go for a problem? एक न्यूमेरिकल दे, कर पाओगे? ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, सिर्फ फॉर्मूला तुमको याद रखना है, ये फॉर्मूला हम अभी फिलहाल के लिए दे देंगे तुम लोग को, लेकिन एग्जाम के फॉर एग्जाम पर्पज यू मस्ट रिमेम्बर दिस फॉर्मूलाज, ओके, क्योंकि कोड में भी नहीं है ये, अगर कोड अलाउ भी करेंगे तो ऑल दीज आर नॉट इन द कोड्स, कोड में थोड़ा मॉडिफाई करके दूसरा ही फॉर्मूला है, ओके। सो प्लीज सपोज दिस इज योर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। सी, the question is the radius of relative stiffness for a 20 centimeter thick slab, so this is your H value, right, with E equals to, it's already given, E का value already दिया है, इतना kg per centimeter square, Poisson's ratio is 0.15, Poisson's ratio is your mu, right, resting on a subgrade having modulus of 5 kg, what, this is your first parameter, first parameter was K, जैसे हम बोले थे फ्लेक्सिबल में CBR है, यहाँ पे है तुम्हारा सबग्रेड का प्रॉपर्टी जिससे आइडेंटिफाई होता है, डिनोट होता है, दैट इज योर K, मॉड्यूलस ऑफ
subgrade reaction, modulus of subgrade reaction, which is denoted by letter K in the formula, 5 kg per centimeter square. तो बोला है कि ये सब डाटा के लिए व्हाट इज द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, मतलब स्मॉल एल क्या है. ऑप्शंस आर गिवन हियर. प्लीज कैलकुलेट एंड फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन. फॉर दिस यू मस्ट हैव, पहले ये सब नोट डाउन करो, ठीक है. H is your 20 centimeter, capital E is given, mu is 0.15 and small k is 5. Modulus of subgrade reaction is 5 kg per centimeter cube होगा ये, सॉरी ये क्यूब होना चाहिए. This is square, this will be cube. नोट डाउन हुआ? সুদীপ্ত আছো? হ্যাঁ ম্যাম বলুন। করো, নোট ডাউন করো। ম্যাম অ্যান্সার 17.884। 17? না ঠিক আসেনি মনে হচ্ছে, আরেকবার। আগে দেখ, h is 20 সেন্টিমিটার, অপশন তো নেই 17 এর কিছুই. h is 20 সেন্টিমিটার, mu is 1.15, e is 3 into 10 to the 5 and k value is 5 kg per centimeter. Use this value, first value, second value, this one, see, ये इक्वेशन में पुट करना है हमको. रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस चाहिए, दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द स्मॉल एल वैल्यू. क्या क्या चाहिए इसके लिए? E चाहिए, इट्स गिवन. H चाहिए, इट्स गिवन. K चाहिए, इट्स गिवन. म्यू चाहिए, वो भी दिया है. मैम 79.98 হবে? हाँ हाँ 79.98, that means it is approximately equals to 80, which is there in the option. সবার এসেছে? কজন আছো গো? অরিন্দম, শুভজিৎ বিশ্বাস, সিমন আসেনি আজকে? ম্যাম আছে। আছে? হ্যাঁ ম্যাম। কোথায় আছে? ও 10 জন আছে পার্টিসিপেন্ট. সবার এসেছে? হ্যাঁ ম্যাম। 80 centimeter, approx 80 centimeter. See, it's in your option, so option 2 is your correct answer. Okay, বাকিরা? অরিন্দম, শুভজিৎ, সুদীপ্ত, প্রসিড করব? Yes, ma'am. এসেছে? Yes, ma'am. 79.75. বাহ, গুড. সাগনিক? Yes, ma'am. গুড. আচ্ছা, এবার এটা করো তো. দিস ইজ দ্য প্রবলেম অন স্ট্রেসেস ডিউ টু লোডিং ইন রিজিড পেমেন্ট. So due to loading बोल रहा है, so we have to use which equation? Westergaard equation. Okay, now see what are the different parameters they are given. They are saying calculate the stresses at interior, edge and corner regions of CC pavement. That means this is your rigid pavement. Okay, using Westergaard equation. They have already asked you to use the Westergaard equation. Now for Westergaard equation, there are some data that are required. Which are those? Will load is how much? 5100 kg. This is your P, capital P. In the equation, there is one capital P. This is that one, okay? Elastic modulus of cement concrete. Again, this is what? E. Okay? Pavement thickness. This is your H. It's in centimeter only. Modulus of grade reaction. This is your K. And contact radius. This is your A. ठीक है, तो व्हील लोड दिया है, देखो P is, you can write down P equals 510 kg, 5100 kg. E equals to this much, 3 into 10 to the power 5. H is 18 centimeter. K is 6 kg per centimeter cube.
A is 15 centimeter and mu is not given, so we have to assume. Okay, so you can assume the value of mu as 0.15 as 0.15. লিখে নিয়েছো ডাটাগুলো? হুম, হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম বলছি পেভমেন্ট থিকনেসটা কি 18 সেন্টিমিটার? হ্যাঁ 18 ठीक है, pavement thickness is 18 centimeter. You have noted down. Now we will go to the formula. Okay, so let's go. ম্যাম হ্যাঁ বলছিলাম যে এখানে এ যে ভ্যালুটা আছে মানে 15 সেমি, হ্যাঁ, সেটা তো 1.724 এর থেকে ছোট। we have to use which formula? তাহলে বি ইকুয়ালস টু রুট ওভার 1.6 এক্স স্কোয়ার Yes, প্লাস yes, এইচ yes. This one. Your A value is coming out to be 15. They have given 15, and this is your how much? 1.724 into 18 centimeter. कितना आ रहा है ये? 31.032। जो भी है 31.03. ठीक है, see this is this condition. A is lesser than this much value, so we have to use this one for calculating small b. और ये b क्यों चाहिए? क्योंकि in the Westergaard equation see there is one b also. देखो यहाँ पे b है, ये b के लिए हमको वो वाला चाहिए। ठीक है, देखो वेस्टरगार्ड इक्वेशन में क्या क्या चाहिए था? p चाहिए, p they have provided p equals to 5100 kg, h equals to 18 centimeter, b we will calculate from there, और रह गया कौन सा? स्मॉल l। ম্যাম স্মল এল এর ভ্যালু 70.61। 70.61 দেখো কত আসবে, দেখতে হবে। ম্যাম তাই এসছে আমার হ্যাঁ 70.61। 70.61 see here L is coming out to be 70.61। L के लिए क्या क्या चाहिए? कैपिटल E, H, K और mu. Mu was not given, so I said if it is not given, then assume it as 0.15. See L এর value 70.61 এসেছে সবার? Please respond. हाँ मैम 70.61। সেন্টিমিটার। বাকিদের অরিন্দম, সাগনিক, L এর ভ্যালু আগে ক্যালকুলেট করো। Yes, ma'am. আগে L টা ক্যালকুলেট করো, ঠিক আছে? L এর জন্য ক্যাপিটাল E চাই, ঠিক আছে? ক্যাপিটাল E চাই, H চাই, K চাই, মিউ চাই। সবই দেওয়া আছে এক্সেপ্ট মিউ। মিউ ভ্যালু ইউ হ্যাভ টু অ্যাজিউম। বাকিরা স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করো যদি ফর্মুলা না লিখে থাকো তো। আমি দিয়ে দিচ্ছি ফর্মুলা এখানে। দিস ইজ দ্য ফর্মুলা at interior edge and corner. ম্যাম বলছিলাম যে বি এর ভ্যালুটা কি 14.003 হবে? দেখছি দাঁড়া। বি 14 সেন্টিমিটার, হ্যাঁ 14 সেন্টিমিটার। বি এর ভ্যালু দেখো 14 সেন্টিমিটার আসবে। বাকিরা করেছো? এল এর ভ্যালু এসেছে অরিন্দম? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম 14ই আসছে। অরিন্দমের? সুদীপ্ত, অরিন্দম আর কে কে আছো? শুভজিৎ বিশ্বাস? ম্যাম করছি ম্যাম। ম্যাম বি এর ভ্যালু 31.033। হায় রে এত বেশি! 31.033 হচ্ছে তোর 1.724H। ওটা বি না তো? ওটা তো কন্ডিশন বলছি আমি। কন্ডিশন তো দেখ, এটা বলেছি। সি ইয়ার যদি এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই হয়, এ
এ কত ছিল 15 আর তোর ওই ভ্যালুটা দেখ 31.03 যেটা আসবে, দিস ইজ দিস ভ্যালু। তাই বলছি বি এর ভ্যালু 31.033। নো, ওটা এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করেছে, দেন উই হ্যাভ টু ইউজ দিস ফর্মুলা ফর ক্যালকুলেটিং বি। ওটা দেখ তোর 15 আর এইদিকে 31 এসেছে, সো 15 ইজ অবভিয়াসলি লেসার দেন 30, right? হ্যাঁ 31. So we হুম have, then we have to use this value, then we have to take b equals to this much. যদি এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই না হতো, যদি a will be greater than this value, then b is taken as a value, ঠিক আছে? আচ্ছা হুম তাহলে we have to use this formula, তোর এই ফার্স্ট কন্ডিশন স্যাটিসফাই করেছে, so b is this formula. ম্যাম হ্যাঁ বলছি যে এসআইটা কি 19.28 হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ 19.28। হুম, ইউনিট কি হবে? কি হবে বল? এটা কি বার করছো? স্ট্রেস ডিউ টু ইন্টেরিয়র লোডিং। স্ট্রেস লোডিং এর জন্য, হ্যাঁ এত যাও না পাতি ভাষায়, দেখো লোডিং এর জন্য স্ট্রেস কি হবে, রাইট? হুম তার মানে আমি এটা স্ট্রেস বার করছি, হ্যাঁ স্ট্রেসের বি ইউনিট কি 14.003? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো স্ট্রেসের ইউনিট কি পৃথা? নিউটন। হ্যাঁ, নর্মাল নর্মাল Newton per millimeter square. নিউটন मतलब লোড পার হ্যাঁ ইউনিট এরিয়া। এখানে হ্যাঁ আমাদের ইউনিট কি করছি, কেজি ছিল, ঠিক আছে, কেজি। সেন্টিমিটার ইউজ করেছি, সো কেজি পার সেন্টিমিটার স্কয়ার। আচ্ছা ঠিক আছে। ম্যাম ওই ইকুয়েশন গুলো একটু দেখাবেন একবার। বড়টা হ্যাঁ ওই চেষ্টা করে ইন্টেরিয়র লোডিং এর। এনে। হুম। আচ্ছা অরিন্দম, তুমি বি এর ফর্মুলা লিখেছো তো? বিটা কি করে আসবে? ম্যাম বিটা 14 আসবে? হ্যাঁ হ্যাঁ 14 আসবে। বাকিরা বি এর ভ্যালু বার করতে বুঝে গেছো কিভাবে বার করতে হয়? ফর্মুলা দেখাতে হবে। সুদীপ্ত বা সাগনিক? আছে এটা। এসেছে সাগনিক? ম্যাম এসআই 21.238। এসআই হ্যাঁ স্ট্রেস ডিউ টু ইন্টেরিয়র লোডিং। তোর এল কত এসেছে? এল এসছে 70.61। বি এসেছে 14, লগ 10 কিন্তু, এলএন না ওটা, লগ 10 বেস কিন্তু, ঠিক আছে? আচ্ছা এলএন করেছিস নিশ্চয়? ম্যাম ম্যাম লগ 10ই করেছি। ম্যাম হ্যাঁ বলছি এসইটা মানে যেটা এজ, এজ তো ওটা এজ হ্যাঁ ওটা 28.54 কেজি আসবে। হ্যাঁ 28.54। আচ্ছা তুমি কি নাম সমশ্রী, দেখো এটা পিটা কত বসেছো? 5100। ম্যাম 5100। এইচ 18 স্কোয়ার, এটা এইচটা হচ্ছে 18, হ্যাঁ 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 এলটা 70.61 আর বিটা হচ্ছে 14। ম্যাম আমার 14.003 এসছে, সেটা আমি বসিয়েছি। সে যতই বসান না, 003 হলে তো 14 এর কাছাকাছি তো রে বাবা। ম্যাম এটা এটা কি 19.3 হ্যাঁ কেজি পার হ্যাঁ সেন্টিমিটার? হ্যাঁ হ্যাঁ 90 কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার, ঠিক আছে? হ্যাঁ ওটা 19 কেজি। সমশ্রী দেখো 19.29 আসবে, আবার একটু ক্যালকুলেট করো। হ্যাঁ ম্যাম করছি আরেকবার। করো। আচ্ছা ছেলেরা কোথায় গেল? সব মেয়েরাই করে যাচ্ছে, ছেলেদের ডাউট নেই? এই ফর্মুলা দেখো আছি আগে। ম্যাম, করছি ম্যাম। আচ্ছা বি এর এই ফর্মুলা লিখে রাখবে, বি এর এই ফর্মুলাটা, ঠিক আছে? এই দুটো ফর্মুলা আপনি এই নোটটা দেবেন না? আমি দেবো, কিন্তু এখন করো না তুমি। হ্যাঁ করছি। আমি তো নোট তো প্রত্যেকবারই দেয়া দিই। আছে গ্রুপে। হ্যাঁ দেওয়া আছে।
এই যে ম্যাম হ্যাঁ বলছি এসসিটা হুম ওটা কি 24.27 কেজি হুম পার হুম হুম, সেমি হুম। আসবে? এই তো ঠিক আছে এই যে 24.27, এসই হচ্ছে 28.54, এসআই হচ্ছে 19.29। ম্যাম এবার ভেরি গুড বলুন। ভেরি ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ভেরি গুড, What? ভেরি গুড। Excellent. থ্যাংক ইউ ম্যাম। What about others? Boys group. শান্ত শিষ্ট বসে আছো ম্যাম শুধু ঘুরে বেড়ায়, কেউ করে না, কিচ্ছু করে না। ক্লাস, আমি তো বলছি ক্লাসের টাইমে অ্যাটলিস্ট রুমে বসে। বাবারে কি ক্যালকুলেট করছে। আর একজন, আর কে একজন এখানে বাজে শুধু হুম শুম শ্বাসটা নিয়ে যাচ্ছে। এই ম্যাম পেজ লোডিং এর একটু equation না। এই লে এখানে ম্যাম আছে দেখ। মাইক কাজ করছে না, কার? এবার কাজ করেছে। এতক্ষণ কিছু শোনোনি? হ্যাঁ আমি শুনেছি, আমি কিছু বলতে পারছিলাম না, আচ্ছা ডিসকানেক্ট করে কানেক্ট করলাম আর কাজ ও করছে। তো মাইক্রোফোন বন্ধ করে দিয়েছে। আচ্ছা তুমি অ্যানসার করছো তো? কত কত এসেছে? হ্যাঁ দেখো এইগুলো হচ্ছে ভ্যালু, তিনটে ভ্যালু, ঠিক আছে? স্ট্রেস ডিউ টু ইন্টারের বল হচ্ছে তুই কি করেছিস বল ভাই, কি কি করেছিস বল। হলে জানাও তাড়াতাড়ি, তারপর আবার বলবে নেটওয়ার্ক নেই বলবে। সিমন শ্যামশ্রী হলো? না ম্যাম এই লোডিংটা করছি। তোর কি ক্যালকুলেশন এখন হয়নি এই এসআইটা? ম্যাম এটা 19 পয়েন্ট হ্যাঁ এসছে। হ্যাঁ 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 এই তো 19 পয়েন্ট এখানে আনসার আছে দেখ। এসসি ফরওয়ার্ড এসসি এই তো এখানে দেখো 3ph স্কোয়ার 1 মাইনাস a আন্ডার রুট 2 বাই l টু দি পাওয়ার 0.6 দেখা যাচ্ছে এটা? দেখো ম্যাম স্ক্রল করে একটু নিচে নামান। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ম্যাম দুটো কাছাকাছি এসছে, পুরো আসেনি। ঠিক আছে ওটা কোনো কিছু না। 18 পয়েন্ট একটা এসছে, একটা 30 এসছে। এত কোনটা গো 18টা আবার? ফার্স্ট এটা যেটা 19.29 এসছে, এটা 18.99 এসছে, 98 এরকম। আচ্ছা ঠিক আছে 19 এর কাছাকাছি এলে হলো। আর 28 পয়েন্ট যেটা 54 আছে, ওটা 29 পয়েন্ট সামথিং এসছে কিছু। ঠিক আছে তুমি লগ 10 বেস করেছো তো? এলএন করোনি তো আবার? হ্যাঁ লক 10 বেশি করেছি, ঠিক মানে আছে। পার্ট পার্ট করে করেছি, পুরো একদম ডাইরেক্ট লিখিনি। ও আচ্ছা এটা আমি ডাইরেক্ট করেছি তাই এটা আসছে। না ওই ব্যাকেটের আগে পার্টটা করেছি, দিয়ে খাতায় লিখলাম অ্যান্সারটা, হুম, তারপর এটা করলাম, দিয়ে এভাবে করেছি। ঠিক আছে ঠিক আছে। সেটাই প্রসেস ইজ দ্যাট ওয়ান অনলি, ঠিক আছে? হুম হুম হুম। ক্লিয়ার? এবার প্রসিড আমার করবো? হয়ে গেছে। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে। শ্যামশ্রী হয়েছে, সাগ্নিক হয়েছে, শুভজিৎ হ্যাঁ হয়েছে, ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। অরিন্দম, অরিন্দম হুম না বলো ক্লিয়ার? এটা তো ফর্মুলাতে বসিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে? এটা হয়ে যাবে। এবার another concept is this, what is the nature of क्लियर that, मैम। what is the nature of that stress? मतलब जो लोड की वजह से जो तुम लोग के पेवमेंट के ऊपर, स्लैब के ऊपर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, what is its nature, whether it is compression in nature or it is tension in nature, ये थोड़ा याद रखना है हमको, ठीक है? say for example this is the wheel load at the মানে হচ্ছে তোমার পেভমেন্ট স্ল্যাব আছে, ঠিক আছে? this is the pavement slab, ठीक है? suppose load is at edge or somewhere in the interior region, corner में नहीं, ये वाला कंडीशन किसके लिए? for edge and interior,
तब ये स्लैब का कंडीशन कैसा हो जाएगा? इट विल इन अ हॉगिंग कंडीशन, राइट? सॉरी, सैगिंग कंडीशन हो जाएगा ये सैग हो जाएगा, ठीक है? मतलब ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा। पहले कौन सा था? पहले ऐसा था स्ट्रेट, it was straight, initially it was straight, after load it is deformed in this manner, ठीक है? So इस वजह से टॉप सरफेस में क्या हो जाएगा? देखो, टॉप सरफेस is trying to compress whereas bottom surface is in tension, ठीक है? यहाँ पे खिंचाई हो जा रहा है, मतलब ये क्या है? टेंशन में, और यहाँ पे तुम्हारा सप्रेस्ड हो जा रहा है, सो दिस इज compression in nature. So at this region, at this loading condition, टॉप लेयर में क्या हो जाएगा? कंप्रेशन होगा, और बॉटम में क्या होगा? टेंशन होगा। ये थोड़ा याद रखना है, ठीक है? टेंशन को हम लाल में क्यों कर दिया? बिकॉज concrete, this slab is made up of concrete which will be good in compression but it will be weaker in tension, इसलिए compression को हम green कर दिया क्योंकि ये safe रहेगा compression में, लेकिन tension region जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे थोड़ा danger हो जाएगा, cracks develop होने का chance हो जाएगा, that's why it is in red, मतलब रेड कलर से दिया है, ठीक है? अब ये तो है तुम्हारा फॉर इंटीरियर एंड एज। नाउ कम्स फॉर कॉर्नर। अगर ये वाला लोड अब ऐसे ट्रैवल करके यहाँ पे कॉर्नर में पहुंच गया, ठीक है, तो क्या होगा? इसको ऐसे मूव होने का चांस हो जाएगा। नाउ इट विल बी इन हॉगिंग कंडीशन, ठीक है? तो हॉग कंडीशन में क्या हो जाता है? ऊपर तुम्हारा टेंशन जनरेट होता है और नीचे कंप्रेशन। सो टॉप में टेंशन और बॉटम में कंप्रेशन। सो ड्यू टू लोडिंग, these are the किस किस पोजीशन में जब लोड रहता है तब उसका नेचर कैसा होना चाहिए। सो दिस इज द कंडीशन। क्लियर? यस मैम। বাকি জন? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, এবার আমি আজকে একটু শুধু প্রসিড করব नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो दिस आर योर लोडिंग स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग, कंप्लीट यहाँ तक है, ठीक है? अगर बोलेगा तो वेस्टरगार्ड इक्वेशन के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयर वाज अनदर स्ट्रेस आल्सो ड्यू टू टेम्परेचर। अब ड्यू टू टेम्परेचर दो टाइप का स्ट्रेस था, एक बोले थे वार्पिंग स्ट्रेस और एक बोले थे तुम्हारा क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो आज हम वार्पिंग स्ट्रेस का थोड़ा आइडिया सिर्फ देंगे, फॉर्मूलाज में नहीं जाएंगे आज। आई विल गिव यू सम आइडिया, ओके? देखो, तो देयर विल बी टू रीजन। एक रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू डेली वेरिएशन इन टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर अक्रॉस द थिकनेस, मतलब टॉप और बॉटम में जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से, जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से जो स्ट्रेस होगा, दैट इज योर वार्पिंग स्ट्रेस। एंड अनदर इज योर सीजनल वेरिएशन, मतलब विद इन द स्लैब एंड आउटसाइड द स्लैब में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट इज योर फ्रिक्शनल स्ट्रेस। क्लियर डिफरेंस दोनों में? एक है खुद के ही, मतलब तुम्हारे माथे पे एक टेम्परेचर है और तुम्हारा फुट पे एक टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस होगा स्लैब की तुम्हारे में, दैट इज योर वार्पिंग स्ट्रेस। और एक है कि तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा तुम में, दैट इज द फ्रिक्शनल स्ट्रेस। क्लियर? यस मैम। अब इसको हम डायग्राम से अच्छे से समझा देंगे Yes, कि ma'am. क्या है, ठीक है? तो मेनली हम बोले थे दिस इज अ डेली टेम्परेचर वार्पिंग स्ट्रेस, या कर्लिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं क्योंकि पेवमेंट पूरा कर्ल हो जाता है की वजह से, तो कर्लिंग स्ट्रेस भी है इसका नाम। नाउ कम्स इट इज ड्यू टू डेली टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब डे में कैसा होना चाहिए, नाइट में कैसा होना चाहिए, यही है। और वो बोला था तुम्हारा सीजनल, मंथली हो सकता है या सीजन में हो सकता है। And another important term is here, we should consider the temperature difference between top and bottom layer, which is denoted by small t. फॉर्मूला में जब जाएंगे वहां पे एक स्मॉल टी रहेगा, वो स्मॉल टी क्या है? टॉप लेयर और बॉटम का बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखो, सपोज दिस इज योर ड्यूरिंग डे कंडीशन, ये वाला देखो, दिस इज ड्यूरिंग डे। डे में क्या होता है बोलो? टॉप सरफेस में ज्यादा टेम्परेचर होगा ना कि बॉटम सरफेस में? सुबह के टाइम में एकदम मिड नून में 12টার সময় একদম Top. top temperature, suppose that is T1 and the bottom temperature is your T2. So daytime में क्या होता है? Obviously T1 will be greater than T2, डायरेक्ट तुम्हारा सन के कांटेक्ट में है, सन रेज के कांटेक्ट में है, तो यहाँ का टेम्परेचर
विल बी ग्रेटर देन द बॉटम का टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या हो जाता है ड्यूरिंग डे और ड्यूरिंग समर, वी कैन से समर मिड डे। ठीक है, समर में क्या हो जाता है, दिस स्लैब विल ट्राई टू एक्सपैंड। ठीक है, समर में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब वो विंटर ठंडा का मौसम में वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और गर्म के मौसम में इट विल ट्राई टू एक्सपैंड। स्लैब विल ऑल्सो फॉलो सेम पैटर्न। ठीक है, गर्म में वो एक्सपैंड होता है। अब सुबह का टाइम में क्या होता है, गर्मी होता है, तो तब क्या होता है, ये एक्सपांशन ही होगा। देखो इस तरफ गया, इस तरफ गया, स्लैब विल ट्राई टू एक्सपैंड, बट सिंस टॉप का टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू द बॉटम का टेम्परेचर, सो रेट ऑफ एक्सपेंशन of the top surface is more compared to the rate of expansion of the bottom surface। मतलब जितना रेट से ये एक्सपैंड करेगा उतना रेट से ये एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, थोड़ा एक्सपैंड होगा लेकिन कम रेट में होगा। तो इसलिए सपोज ये एक्सपैंड होके सिर्फ यहाँ तक आया टॉप का बॉटम का सरफेस, और टॉप का लेयर आएगा तुम्हारा इतना दूर तक, सेम यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कंडीशन कैसा हो जाएगा, ये ऐसा मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे कर्ल हो जाएगा। Pavement will try to warp or curl in this position। अब ये वाला किस तरफ है, देखो ये नीचे की तरफ कर्ल किया है, राइट, नीचे की तरफ ऐसा झुका हुआ है पेवमेंट। सो इट इज ऑल्सो नोन एज वर्प डाउन कंडीशन। एक होता है वर्प अप, एक होता है वर्प डाउन। तो वर्प डाउन कब होता है, तुम्हारा डे टाइम में होता है। ठीक है, वर्प डाउन ऐसा, वर्प डाउन मतलब नीचे कर्ल हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये वाला और लोडिंग वाला में कुछ डिफरेंस है। लोडिंग की वजह से नेचर जो बोले थे, इसके वजह से नेचर जो बोले थे वो थोड़ा डिफरेंस है, क्लियरली सुनना है तुमको। देखो ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, एक्सटर्नली ये क्या स्लैब ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ट्राई क्या कर रहा है, ऐसे हॉगिंग कंडीशन में जाने का कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, टॉप सरफेस में तुम्हारा देखो टेंशन हो जा रहा है, ऐसे खींच रहा है, राइट, टेंशन हो जा रहा है। वेयरएज बॉटम सरफेस में क्या हो जा रहा है, बॉटम सरफेस में देखो क्या हो जा रहा है, कंप्रेशन होने का कोशिश कर रहा है। लेकिन कभी तुम लोग रिजिड पेवमेंट का स्लैब ऐसे देखे हो कि ऐसा ऊंचा हो गया है, हॉग हो गया है? स्लैब विल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, राइट। स्लैब टेंडेंसी रहता है कि वो फ्लैट ही रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ इज सेल्फ वेट। उसका तो एक वजन है, राइट, उसका तो एक वेट है, वो वेट हमेशा चाहेगा कि उसको फ्लैट अपना जैसा पोजीशन में उसी में रखने का करेगा। तो क्या होगा, जो भी ये वाला है देखो, दीज आर द एक्सटर्नल फोर्स या दीज आर द एक्सटर्नल स्ट्रेस। तुमको तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस आ रहा है एक्सटर्नली, बट यू वांट टू बी इन योर ओन पोजीशन, राइट। जैसे था पहले, जैसे था ऊपर में, वैसे ये भी अभी भी वैसे रहना चाहता है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, वी हैव टू रेजिस्ट दिस फोर्सेस और रेजिस्ट दिस टेंसाइल स्ट्रेसेस, राइट। तो ऊपर टेंशन है तो वो अंदर में ड्यू टू सेल्फ वेट क्या कोशिश करेगा, कंप्रेस होने का कोशिश करेगा, सो दैट इट कैन रेजिस्ट दिस मोशन। देखो ये इस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको बोलेगा तुम रेजिस्ट करो, इस तरफ आएगा। अब नीचे क्या हो रहा है, नीचे एक्सटर्नली कंप्रेस होने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इंटरनली क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करने का कोशिश करेगा। सो इन ऑर्डर टू रेजिस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कंप्रेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली टेंशन उसका ऑपोजिट में होगा, राइट। अगर ऐसे डायरेक्शन होगा मतलब नीचे क्या है, टेंशन, और ऐसे ऊपर ये है तुम्हारा एक्सटर्नल स्ट्रेस की वजह से। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन टॉप में ये स्ट्रेस जनरेट होने का कोशिश करेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ इज सेल्फ वेट इट विल ट्राई टू रेजिस्ट दोस स्ट्रेसेस। तो रेजिस्ट करने के लिए क्या होगा कि इस डायरेक्शन के ऑपोजिट तुमको एक्ट करना पड़ेगा फोर्स, राइट। सो टेंशन के लिए कंप्रेशन है और नीचे कंप्रेशन के लिए टेंशन है। ठीक है, क्लियर क्लियर। ইয়েস ম্যাম। ডাউট থাকলে Yes, বলো। ma'am. দেখো এটা হচ্ছে বাইরের তোমার টেম্পারেচারের জন্য হ্যাঁ কি ম্যাম। স্ট্রেস ডেভেলপ হতে পারে, ঠিক আছে। এটা এটা সম্ভাবনা আছে কি এটা এরকম ওয়ার্ক ডাউন কন্ডিশনে হয়ে যেতে পারে, বাট বিকজ অফ ইটস ওয়েট
इट विल रेजिस्ट स्ट्रेस। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए तुम्हारे अंदर ही एक स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस। सो ऊपर ऊपर टेंशन है तो अंदर में क्या हो जाएगा, ऊपर लेयर में कंप्रेशन, नीचे एक्सटर्नल कंप्रेशन है तो अंदर में क्या हो जाएगा, नीचे टेंशन जनरेट होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला है टॉप में है कंप्रेशन, बॉटम में है टेंशन। अब इसका ऑपोजिट होगा तुम्हारा नाइट टाइम में। क्यों? नाइट टाइम में है कि ये वाला जल्दी कूल हो जाएगा, राइट। सारा दिन गर्म होके रहा है और नाइट में ये स्लोली स्लोली कूल होना स्टार्ट करेगा, तो उसकी वजह से टॉप सरफेस में क्या है, ब्रीज चल रहा है, हवा चल रहा है, नाइट का टेम्परेचर ज्यादा कम हो जा रहा है, तो ये जल्दी कूल हो जाएगा। whereas कंपेयर टू द बॉटम, बॉटम क्या होगा, थोड़ा स्लोली कूल होगा। ठीक है, तो वी कैन से दैट नाउ बॉटम टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द टॉप टेम्परेचर। सी हियर, ठीक है, बॉटम टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द टॉप टेम्परेचर, मतलब ये ज्यादा कूल है, ये थोड़ा कम कूल है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब नाइट में ये स्लोली स्लोली फिर से, ये डे टाइम में एक्सपैंड हो रहा था, अब नाइट में क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये टॉप लेयर, मतलब टॉप लेयर जितना रेट में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये ज्यादा ठंडा हो रहा है, तो ज्यादा जल्दी जल्दी कूल हो जाएगा, ज्यादा जल्दी जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। वेरएज बॉटम क्या होगा, स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखो, इसीलिए ऐसा एक कंडीशन जनरेट होगा, मोर कॉन्ट्रैक्शन लेस कॉन्ट्रैक्शन। तो उसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, इट हैज अ टेंडेंसी टू वार्प अप। अब इसको बोलते हैं वार्प अप, ये ऊपर की तरफ घुरा हुआ है। सो वार्प अप कंडीशन, दिस इज कॉल्ड वार्प अप कंडीशन। तो बोलो अब क्या होगा यहाँ पे, वार्प अप कंडीशन के लिए एक्सटर्नली क्या हो जा रहा है, कंप्रेशन होने का कोशिश कर रहा है टॉप में, और बॉटम में टेंशन होने का कोशिश कर रहा है, राइट। अब इन दोनों को रेजिस्ट करने के लिए ड्यू टू सेल्फ वेट, खुद के अंदर क्या हो जाएगा, ऊपर टेंशन है तो ऑपोजिट साइड में रिएक्ट करेगा विच इज टेंशन, और नीचे टेंशन है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए अंदर में कंप्रेशन जनरेट होगा। तो इसीलिए टॉप में है टेंशन, अगेन रेड कलर मीन्स इट इज नॉट गुड बिकॉज कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, एंड बॉटम कंप्रेशन में है। क्लियर? Yes, ma'am. They Yes, may ma'am. ask you write down the short notes on different stresses, so you can draw like this and explain. Okay, फॉर्मूला अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर तुमको कंडीशन क्या है कैसा है अगर याद रहेगा, एंड इफ यू एक्सप्लेन बाय ड्राइंग, देन इट विल बी वेरी गुड। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, और प्रॉब्लम में नहीं जाएगी। इसका भी था तुम्हारा, ये सब है फॉर्मूलाज, अभी नहीं जाएंगे वो बाद में। ठीक है, फ्रिक्शनल और ये वार्पिंग स्ट्रेस का फॉर्मूलाज हम बाद में कर देंगे प्रॉब्लम्स, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट कि स्ट्रेस होता क्या है। तो वार्प डाउन कंडीशन है, वार्प अप कंडीशन है। ये सब क्यों कर रहे हैं, जब हम लोग क्रिटिकल कॉम्बिनेशन निकालेंगे ना, तब ये सब याद रखना पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा मतलब हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कंप्रेशन है, कहाँ पे तुम्हारा टेंशन है, ये सब। ठीक है, तो इजी होगा वो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए। सो दिस मच, एनी डाउट टिल नाउ? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, No, ma'am.